ہم اپنی آئینی حدود جانتے ہیں، دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا، آئین میں دی گئی آزادی اظہار رائے کی پامالی کرنے والے دوسروں پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ یاد رکھیں، حق طاقت ہے جبکہ باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں، دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کی توقع رکھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. سپہ سالار نے کہا، آئین کے آرٹیکل 19 میں آزادی اظہار رائے کی حدود متعین ہے۔ جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی رائے کی پامالی کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ یاد رکھیں، حق طاقت ہے، باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, White Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا، مضبوط فضائیہ کے بغیر ملک کسی بھی جاہرے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اتری، جس کی بڑی مثال فروری 2019 ہے۔ Professionalism and brilliance of Pakistan Air Force has been clearly displayed in wars against our arch rival and profoundly in February 2019 in a short but seminal engagement against the misplaced calculus of our rival, who mistook our initial restraint as weakness. We shall never allow anyone to challenge our territorial integrity, sovereignty and the security of our beloved homeland. آرمی چیف نے کہا، اسلحے کی دوڑ سے خطے میں طاقت کا توازن بھی بگڑنے کا امکان ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ بھارتی جارحیت پر دنیا کی خاموشی وہاں گونجنے والی آزادی کی آواز نہیں دبا سکتی۔ سپہ سالار نے دو ٹوک الفاظ میں مظلوم کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا، غزہ جنگ میں بوڑھوں، خواتین اور بچوں کا اندھا دھند قتل اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں تشدد بڑھ رہا ہے۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں کیڈٹس نے وطن عزیز سے وفاداری کا حلف اٹھایا، جھپٹتے پلٹتے فضائیہ کے شاہینوں کا لہو گرمایا۔ مہمان خصوصی جنرل سید عاصم منیر نے بہترین کارکردگی پر کیڈٹس کو انعامات سے بھی نوازا۔ پاکستان کسی غیر ملکی حکومت یا ملٹری کو اڈے فراہم نہیں کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، اپوزیشن لیڈر کے اڈے فراہم کرنے کے بیان پر انہی سے پوچھا جائے۔ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں، شہزاد اکبر کے الزامات بے بنیاد اور سیاسی ہیں، انہیں مسترد کرتے ہیں۔ اپنے شہریوں کو نشانہ بنانا ہماری پالیسی نہیں۔ ترجمان نے کہا، جرمن سفیر کا واقعہ افسوسناک ہے۔ غزہ کی صورتحال پر پاکستان سمیت پوری دنیا میں تشویش ہے۔ بھارت میں منشیات سمگلنگ میں پاکستانیوں کی گرفتاری کی رپورٹس دیکھی ہیں، تفصیل ملنے کا انتظار ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے، ایل او سی پر امن ہونا چاہیے۔ بھارت پر زور دیتے ہیں، اشتعال بڑھانے والے اقدامات سے گریز کرے۔ اور اب بات کریں گے گندم درآمد اسکینڈل کی ابتدائی انکوائری رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ وزارت تجارت اور فوڈ سیکیورٹی افسران کو ذمہ دار قرار دے دیا گیا۔ 43 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد گندم ہونے کے باوجود تقریباً 36 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ 2600 سے 2900 فی من تک درآمد کی گئی گندم 4700 روپے تک فروخت کی گئی۔ درآمد اسکینڈل کی ابتدائی انکوائری رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ جو انکوائری رپورٹ ہے اس میں وفاقی وزارت فوڈ سیکیورٹی اور دوسرا کامرس کی وزارت، یہ دونوں ذمہ دار قرار دیے گئے ہیں۔ جب ملک میں وافر گندم موجود تھی تو یہ درآمد کی اجازت کیوں دی گئی؟ گورنمنٹ نے 3900 روپیہ ریٹ مقرر کیا ہے، ہم سے 2700-2800 روپے پہ لے رہے ہیں۔ گندم موجود ہونے کے باوجود درآمد کیوں کی گئی؟ بہتی گنگا میں کس کس نے ہاتھ دھوئے؟ گندم درآمد اسکینڈل کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ نے کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا۔ میں وفاقی اداروں کو غیر ضروری گندم درآمد کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ اے وائی کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل نعیم اشرف بٹ نے بریکنگ سٹوری دی۔ 26 ستمبر 2023 سے یہ آغاز ہوا تھا۔ اس وقت 43 لاکھ سے زائد میٹرک ٹن جو تھی وہ موجود تھی، جبکہ پتا ہو کہ مارچ اپریل میں ملک کی گندم جو ہے وہ بھی آ جائے گی۔ اس کے باوجود 35 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد درآمد کی گئی۔ یہ درآمد مارچ 31 تک نگراں حکومت کے بعد موجودہ حکومت میں بھی یہ ہوتا رہا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ
जबकि मुल्क में 43,65,000 मैट्रिक टन से जायद गंदम मौजूद थी। इसके बावजूद तकरीबन 36 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। स्टॉक रोक कर मसनूई किल्लत जाहिर की गई। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं गंदम दरामद करके 6 करोड़ काश्तकारों का माशी कत्ल किया गया। स्कैंडल नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा ये 6 करोड़ काश्तकारों का माशी कत्ल किया गया। पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। 8 लाख टन से ज्यादा एक्सपोर्ट करे आपने, 20 लाख टन एक्सपोर्ट की। बाहर से सस्ती मंगवा के उसको बिकवाने के लिए पासों के पास पड़ी थी, उसका रेट किया गया 4785 रुपए, ताकि ये कोई ना खरीदे। टोटली बदनीति है। किसानों का कहना है बम्पर क्रॉप के बावजूद अखराजात तक पूरे नहीं कर पा रहे। ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ। 60 ਤੋਂ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਗੰਦਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ नहीं होंगे। गवर्नमेंट ने 3900 रुपया रेट मुकर्रर किया है, हमसे 2700-2800 रुपए पे ले रहे हैं। हमारा वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है सरकारी रेट में। हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी में ताखीर पर किसान तंजीमों ने मिलकर एहतजाज का फैसला कर लिया। कल मुश्तरका लाहे अमल का ऐलान होगा। गंदम की दरामदगी तहकीकाती कमेटी ने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है निगरां दौरे हुकूमत में गंदम इम्पोर्ट हुई, जिससे मसला बना। जितनी गंदम की इम्पोर्ट की इजाज़त दी गई उससे ज़्यादा इम्पोर्ट हुई। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने बताया वज़ीर आज़म ने मामले की तह तक पहुँचने के लिए एक और कमेटी बनाने का कहा है, जिसमें ज़िम्मेदारों का तयन किया जाएगा। हमने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, उन्होंने आज एक रिपोर्ट दी, सारे फैक्ट्स बताए हैं कि हुआ क्या है। केयर टेकर्स की गवर्नमेंट में जितनी इजाजत दी गई उससे ज्यादा गंदम इम्पोर्ट हुई है। जिस टाइम में आनी चाहिए थी उससे बाद भी उसको एक्सटेंशन मिली। पता किया जा रहा है स्टेट बैंक से एग्जैक्ट डेट बताई जाए कि किस वक्त जहाज आए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा एक कमेटी बनाई जाए। सही रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है। 6-7 लाख टन सरप्लस है इस वक्त। कोर्ट हमने इजाजत दी तो प्राइस से लिंक करेंगे। मिल ओनर्स ने हमें यकीन दिलाया तो फिर उसको देख लेंगे, वरना हम इजाजत नहीं देंगे। किसानों को हक मांगने पर जेलों में डाला जा रहा है। टिकटॉकर वज़ीर आला नाकाम हो चुकी हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद ने कहा गंदम खरीदने के मामले पर पंजाब हुकूमत कमेटी खेल रही है। अब वज़ीर खुराक ने गंदम खरीदने से इनकार कर दिया। असेंबली के इजलास में पहले कमेटी खेलते रहे और इसके बाद इनकार कर दिया जी कि हमने गंदम नहीं खरीदनी। टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर फेल हो चुकी है। किसानों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी है, उठा के लेके जा रहे हैं और जेलों में डाल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पंजाब के किसानों के साथ खड़ी है। पीटीआई का किसानों के साथ ज्यादतियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमा ओन अब्बास ने बताया बानी ने कहा है किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है। मामले को अदालत में ले जाएं और निगरां हुकूमत में गंदम दरामद करने वालों को बेनकाब किया जाए। कि जो पाकिस्तान में किसानों के साथ हो रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है। जब उस वक्त आपको पता था कि 68 लाख टन गंदम में पाकिस्तान में मौजूद है, तो आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान में यूक्रेन से गंदम मंगवाने के लिए इसकी इजाज़त दी। इस वक्त पंजाब में 40 लाख टन गंदम है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान का जो इस वक्त किसान है वो अपनी गंदम लेके सड़क पे फिर रहा है। खान साहब ने हुक्म दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस को कोर्ट में लेके जाएगी। 85 अरब रुपए की करप्शन, तमाम लोग जो कि इस पूरी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है उनको बेनकाब किया गया। जमात इस्लामी ने पंजाब में वफाकी हुकूमत गंदम बहरान हल करने के लिए 4 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 4 दिन में गंदम का बहरान हल ना किया तो धरने और एहतजाज का ऐलान करें। वज़ीर आला हाउस पर धरना देंगे। 4 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं पंजाब हुकूमत को और पूरे मुल्क की हुकूमत को। 4 दिन में अगर आप अपनी इस पॉलिसी को रिवाइज नहीं करते, अपना फैसला वापस नहीं लेते खरीदारी ना करने का, तो फिर हम वजीर आला हाउस पर धरने का, एहतजाज का, घेराव का ऐलान करेंगे। अगर उन्होंने इस एहतजाज को रोकने की कोशिश की तो वो तहरीक जो शायद कुछ अरसे के बाद हुकूमत को गिराने की चलनी हो सकता है, उसका आगाज किसानों से ही हो जाए। और खबर है कराची से। मलीर, गडाप और काठौर में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 2.3 रिकॉर्ड की गई है। जलजले का मरकज मलीर के शमाल मशरक में था। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 84 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि जलजले के झटके 5:52 पर महसूस किए गए। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ जाम हिकमत अमली बना ली। वजीर आला सन्द मुराद अली शाह ने एपेक्स कमेटी को बताया सदर ममलकत के अहकामात पर अमल किया जाएगा। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने इंकशाफ किया। कराची पुलिस ऑफिस हमले में मदरसे का एक उस्ताद भी शामिल था। कराची से संजय साधवानी की रिपोर्ट।
सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का 31वां इजलास। मुराद अली शाह ने शुरा को बताया सदर मुमलिकत ने कच्चे में डाकुओं के सहूलतकारों को भी गिरफ्त में लाने और मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन को तेज करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला का कहना था कि स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के लिए जामे हिकमत अमली बनाई है। सिंध हुकूमत ड्रग माफिया और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर काम कर रही है। मंशियात फरोशों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर यह है, मंशियात फरोशों के खिलाफ एक क्रैकडाउन का फैसला किया है। शर्जील मेमन ने इंकशाफ किया कि कराची पुलिस ऑफिस हमले में एक मदरसे का उस्ताद भी मुलविस था। उसमें जो लोग मारे गए उसमें एक शख्स की जब पूरी रैकी की गई तो कराची के पीओ अटैक का वो जो शख्स था वो एक मदरसे में टीचर था। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बावर इफ्तिखार का कहना था कि मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध हुकूमत की भरपूर मदद की जाएगी। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ संजय साधवानी, ARY न्यूज़ कराची। कराची में विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं की अहम मुलाकात। ज़राए के मुताबिक MKM की क़यादत ने वज़ीर दाखिला के सामने स्ट्रीट क्राइम पर अपनी तशवीश का इजहार किया। मज़ीद जानेंगे राफ़े हुसैन से। राफ़े, बताएगा खबर से मुतालिक मज़ीद। देखिए, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और MKM रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में MKM ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों और कत्ले आम पर अपना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ये कहा है कि शहरियों में स्ट्रीट क्राइम की बेचैनी को समझने की ज़रूरत है और ये कोई मामूली किस्म के जराइम नहीं है, बल्कि इस पर वज़ीर दाखिला को सख्त एक्शन लेकर हिदायत जारी करना होंगी। MKM का ये भी कहना था कि कराची को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ देना ये रुझान अच्छा नहीं है और इसका नोटिस लेना होगा। MKM ने यह भी मुतालबा किया कि इन मुजरमान के खिलाफ कोई रियायत ना बरती जाए और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ सख्त की जाए, चाहे कच्चे के डाकू हों या पक्के के डाकू हों, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। MKM ने यह भी मुतालबा रखा है कि स्ट्रीट क्राइम में जो शहरी कत्ल हो गए हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी वफाकी हुकूमत की जानिब से किया जाए और इसके साथ साथ MKM ने वज़ीर दाखिला के सामने अपने जो लापता कारकुनान हैं उनकी बाजियाबी का मामला भी उठाया है और ये कहा है कि लापता कारकुनान की बाजियाबी और जो इस वक्त कारकुनान असीर हैं उनकी रिहाई के लिए वज़ारत दाखिला इक़दाम करे। तो कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आज होने वाली मुलाकात में MKM ने अपना मौक़िफ़ वज़ीर दाखिला के सामने रखा है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। शुक्रिया राफ़े। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और तुर्की तूफानी बारिश की लपेट में हैं। दुबई, शारजा, अबू धाबी में वक्फे से तेज़ बारिश जारी है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। सऊदी अरब में सहराई वादियां पानी से भर गई हैं। अनकरा में मूसलाधार बारिश से सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। पाकिस्तान के मारूफ टेलीकॉम ऑपरेटर जोंग 4G ने डिजिटल तकसीम के खात्मे और इंटरनेट के तेज़ रफ्तार कनेक्टिविटी को यकीनी बनाने के लिए D3 कम्युनिकेशंस के साथ शराकत दारी के लिए है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का नाम पावर्ड बाय जोंग से है, जिससे मुल्क भर में तेज रफ्तार और महफूज इंटरनेट कनेक्टिविटी की फराहमी बगैर किसी रुकावट के यकीनी बनाई जा सकेगी। तर्जुमान जोंग 4G का कहना है ये शराकत दारी पाकिस्तान में डिजिटल तकसीम के खात्मे की जानिब अहम पेशरफ्त है। इससे हम मुकामी कारोबारों की मुआवनत के साथ राब्ते और मालूमात तक रसाई को फरोग दे सकेंगे। खबर देंगे आपको इसहाक डार की नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी का नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। असगर उमर से मजीद तफसीलात जानते हैं, बताइए असगर। ये वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार की नायब वज़ीर आज़म की हैसियत से तकर्रुरी का नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार तारिक मंसूर ने वफाकी काबीना, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ऐवान सदर और दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून में डिप्टी वज़ीर आज़म की पोस्ट का कोई जिक्र नहीं है और इसहाक डार की तकर्रुरी गैर कानूनी है। इसलिए इसहाक डार की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन करार दिया जाए, क्योंकि इसहाक डार की तकर्रुरी के खिलाफ ये अब केस मुकर्रर कर दिया गया है, जो चीफ जस्टिस की अरब अहमद दो रुकनी बेंच जुम्मे की दिन समाअत करेगा। ठीक है, कल इस केस की समाअत होगी। अपडेट करे थे असगर उमर, शुक्रिया। कराची ले चलेंगे गवर्नर सिंध, तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अब मुझे ईमानदारी से बताएं, इस बेचारे का क्या कसूर? इसने तो कभी पूरे इन 20 साल के कैरियर में कहाँ सीखा वाटर कमीशन में कैसे काम होता है? MD साइड लगा दिया। आप बताएं, इसकी अपनी इंडस्ट्री है जो उसको पता होगा, या इसने कभी सीखा हो? लेकिन वो आपके पास आके बैठ गया बेचारा। अब ये सुबह दोपहर शाम दूसरों से, दोस्तों से पूछ रहा है, रिटायर होने वालों से पूछ रहा है कि मैं चलाऊं कैसे। और जब अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 महीने में इसने कुछ ना कुछ सीख लिया तो सुबह इसको एक लेटर आ गया कि आपको अब भेज दिया है फला जगह। अब आप मुझे बताएं कि बेचारे ने आपसे इतनी मीटिंग्स की, आपसे इतनी बातें पूछी, उसके हल पूछने चाहे, ठीक है। अब जब उस हल के करीब पहुंच रहा था तो ये किसी और डिपार्टमेंट में चला गया।
تو یہ تجربہ سیکھتے رہے ہیں جنرلائز قسم کا، یہ جنرلائز ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرینس ہے، اس لیے بیچارے ان چیزوں پہ بھی قابو پا لیتے ہیں جو ان کو پتہ نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔